So, Assalamu alaikum to all of you. This is our lecture number 3, and this is about the age of Geoffrey Chaucer. Before this lecture, we talk about first what poetry is, and then we talk about brief life sketch of Chaucer. And now in the third lecture, I'll tell you about the age of Geoffrey Chaucer. One thing that I would like to mention, and I would like all of you to pay attention to it, is that when we study any writer, so we must know about his age as well. Three things we study. Number one, we study about main things related to his life. Number two, we study his age or her age, and number three, his work. Then we study his work or her work. So if we directly study the work of any writer, so it will not be easy for us to understand. That is why we need to study uh, the life of that writer. Life means not everything related to his life, and then the age in which he was living, because normally writers depict their age. And the third thing is their work. So now we are talking about the age of Geoffrey Chaucer. Now, if anyone has any problem, he or she can ask me. Remember, all these videos will be uploaded to the YouTube channel of English department, right? ये सब आपको वहाँ मिल जाएंगे, तो काइंडली आप वहाँ देख लीजिएगा. हो सकता है रात में मैं इनको अपलोड कर दूँ, या जैसे मुझे सहूलत मिलेगी मैं कर दूंगा, ठीक है? तो आपको वहीं से मिल जाएंगे. अगर लिंक भेज दिया आपको, ठीक है, नहीं तो आप वहाँ जाएंगे तो इंशाल्लाह यू कैन इजीली गेट दीज वीडियोस ओवर देयर. एंड इंशाल्लाह वेरी सून आई विल आल्सो प्रोवाइड यू हैंडआउट्स और नोट्स, देयर सॉफ्ट कॉपी एज वेल एज देयर हार्ड कॉपी. कोशिश करूंगा कि हार्ड कॉपी भी आपको मैं डिपार्टमेंट में भिजवा दूँ, और सॉफ्ट कॉपी यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में डलवा दूंगा, ठीक है भाई? इसके अलावा मैंने आपको जो बुक्स की हैं आप वो खरीद लेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू. आप लोग काफ़ी अच्छा हो जाएगा. तो बुक्स आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव. अगर आप डेफिनेटली उन टेक्स्ट को कॉपी करवाने जाएंगे तो वो आपको ठीक ठाक एक्सपेंसिव पड़ेंगे. बुक से इंटरेस्ट डेवलप होता है, बुक से काफ़ी फ़ायदा होता है. सो काइंडली बाय द बुक्स, राइट? Anyone has any question regarding the previous lecture? This is our last class today. If anyone has any question regarding the previous lecture, so that student can ask. Shall we proceed? Shall I proceed, please? Yes, sir. Okay. So if you talk about Chaucer's age, so definitely the age of Chaucer covers the period from 1340 to 1400, because it was the time when 1340 was born and 1400 he died. So this is called the middle and the last middle and the last part of 14th century. So we cannot say that the early 14th century, but the middle and the end 14th century. These are the two time periods which belong to Chaucer. The main events, trends, and movements of this age in the political, economic, social. अच्छा, कई स्टूडेंट्स के माइक अनम्यूट है. प्लीज म्यूट योर माइक. अगर मैं करूंगा म्यूट तो फिर आप लोग खुद से कर नहीं पाएंगे, ठीक है? तो प्लीज अनम्यूट योर माइक. Sorry, mute your mic. Okay. So the main events, trends, and movements of this age in the political, economic, social, religious, and literary spheres are very important for a proper understanding of the background of Chaucer's life and work. So we must know about them. इनके बारे में जानना काफी जरूरी है. If you talk about Chaucer's age, so we can find salient features of his age like the Hundred Years' War, the Peasants' Revolt, Black Death. I don't know whether you have any idea of Black Death or not. The church, nationalism, the spirit of nationalism, new learning, and birth of English language and literary writers. Okay, so these are the salient features of Chaucer's age, and the age
means 1340 to 1400. This is the time period. Now let's talk about first of all the hundreds years war. The first thing that is the most important characteristic of the age is the 100 years war. Now, what is that particular thing? Let me tell you briefly. During the years between 1337 and 1453, ये तकरीबन 100 से ज़्यादा ही साल बन जाते हैं, लेकिन रफली 100 years वॉर का नाम दिया गया है. There went on a series of conflicts between England and France. बहुत सारे conflicts जो थे चलते रहे between England and France, known collectively as the 100 years war, जिनको कहा जाता है 100 years war. Is this clear? From 1337 and 1453, there went a series of conflicts between England and France. So these conflicts are known collectively as the 100 years wars. The French were trying to regain control of their own country. French कोशिश में थे कि वो अपने country का जो है to they were trying to regain control of their own country. The English to retain their dominion over the western half of it. As I told you that the French tribes, they entered the territory of England, and they were Normans, Anglo-Normans. They were later called Anglo-Normans. So there was a kind of effort. They were trying to regain the control of their own country, and the English trying to retain dominion over the western half of it. Some of the most notable victories in English history were won in this war. कुछ कहा जाता है कि नोटेबल विक्ट्रीज थी जो इंग्लिश की तारीख में उनको नोटेबल कहा जाता है. दोज विक्ट्रीज वर अचीव्ड इन दिस वॉर. वो इस जंग में वो विक्ट्रीज अचीव हुई, लाइक क्रेसी, पोइटियर्स एंड एगिनकोट. और एक बार तो ऐसा हुआ कि इंग्लिश किंग को पेरिस में मतलब ये क्राउन किया गया, उसको ताज पहनाया गया. बट इन द एंड द फ्रेंच हेल्प बाय जॉन ऑफ आर्क गॉट बैक मोस्ट ऑफ देयर टेरिटरी. और उसके आखिर में क्या होगा, फ्रेंच जो है उन्होंने काफ़ी अपनी जो टेरिटरी थी वो इंग्लिश जो आर्मी से रिकवर करवा ली. एंड इंग्लैंड चीफ गेन वॉज इन द निटिंग टुगेदर ऑफ द नॉर्मन एंड सेक्सन एलिमेंट्स. और इंग्लैंड को जो बाद में जो मिला वो नॉर्मन और सेक्सन एलिमेंट जो था इनकी पॉपुलेशन मिली. And in the growth of an English national feeling, and they developed English national feeling. पर वो they understood that they were English. Even those who came from France, they also called themselves English. And the spirit of nationalism then came to them. The re-establishment of the English language was one of the results of this growth. मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूँ कि याद रखिएगा कुछ चीज़ें मैं आपको दूंगा स्टडी करने के लिए, जो आपने खुद स्टडी करनी है और उसके बाद आपने शेयर करना है अपना नॉलेज का, एंड दिस विल काउंट पॉजिटिव फॉर यू. रिमेंबर एट दिस लेवल टीचर्स नॉर्मली फैसिलिटेट स्टूडेंट्स. वी डू नॉट टीच टीचर्स डू नॉट टीच everything to students. They facilitate, and the more student participate, the more they become you can say renowned, and this is something will go positive for you. तो अब मैं आपको बता रहा हूँ 100 वॉर के बारे में ब्रीफली, और आपने इसको खुद डिटेल में देखना है कि ये क्या है. मैंने जैसे आपको बताया कि इट इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, एंड दिस सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कलेक्टिवली नोन एज द 100 years वॉर. फिर मैंने आपको थोड़ा मुख्तसर बताया. और ये भी कहा जाता है कि द रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज दोबारा रीस्टेब्लिश हुई. इट इज़ वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ दिस ग्रोथ and of the abandonment of the attempt to make England a great continental power. और ये उस जो है 100 years war की वजह से इंग्लिश लैंग्वेज भी काफ़ी डेवलप हुई. इज दिस क्लियर? बाकी इसके हवाले से जो है वो आप डेफिनेटली खुद ही सर्च कीजिएगा. यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट एंड फ्रॉम डेफिनेटली द अदर बुक्स व्हाट दिस 100 years war. Even you can find this from history book. Sir, can I speak? Yes, please. Sir, can you give a little bit summary that what you have explained?
because it's a bit confusing. Like it's just merged up. Excuse me, sir. Yes. Sorry for meddling up, but I got a request. Would you mind if I say anything? I Yes. hope you won't. Yes. Yes. Hurry up. I Time hope is short. so. Okay, sir. Sir, I really like the your methodology of teaching, but sir, it's very difficult to take the online class. Why don't you take the physical class? मैंने अभी शुरू में आपसे यही कहा था कि आई वांटेड टू टेक योर क्लास ऑन कैंपस, बट एक्चुअली मैनेजमेंट, दिस इज द डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट। ये जो आपको मैं अभी ऑनलाइन करवा रहा हूँ ना, मुझे इसमें डबल मेहनत करनी पड़ती है। फर्स्ट आई हैव टू प्रिपेयर स्लाइड्स एंड आई हैव टू डू We ऑल दिस थिंग्स, understand, राइट? sir. We understand So and we now respect. the problem But is that whatever the management says, we have to follow them. We have to follow their orders because of short of space. ठीक है, तो मैनेजमेंट से But sir, बात नहीं as you know, and as we know, that pottery is not the subject to take lightly, कर is it? देखिए So आप it's our आपका toughest subject. पोइट्री में ऐसा नहीं कि आपको हर चीज़ टीचर बताएगा, आपको टीचर बहुत सी चीज़ें देगा करने के लिए, और आपने उसको खुद भी उसको Yeah, फाइंड you आउट करना will है। just ठीक facilitate. है, We agree that you will just facilitate. ऑनलाइन वो लेकिन हमें रिमेम्बर, अपना ही करना पड़ेगा. हाँ, लेकिन या, पोट्री सर अगर याद फिजिकल क्लास होगी तो it would be ठीक more है, easier for us. देखें Trust me. या पोइट्री में जो है मेरे निकाल इतनी प्रॉब्लम, लेकिन जो सेकंड कोर्स आपको पढ़ाना होगा ना, उसमें प्रॉब्लम फेस आ सकती है, बिकॉज उसमें एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। बहरहाल ये कि आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, बट द प्रॉब्लम इज दैट वी हैव कम अज़ कम इस सेमेस्टर हमें इसको लेके चलना होगा, बिकॉज देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ कोविड-19 स्टिल गोइंग ऑन। आपको तो पता है अभी भी ये मामला चल रहे हैं, वी कैन नॉट इग्नोर इट। आप देखें मैचेस हो रहे हैं, मैचेस में अटेंडेंस क्या होती है, 20% क्या होती है, इन्होंने वहाँ पे हाफ भी नहीं किया, 20 किया हुआ है। तो अब अगर यूनिवर्सिटीज़ और जामियात में अगर वो एकदम वो कर देंगे और कोई मसला हो जाएगा तो यूनिवर्सिटी सील कर सकते हैं, बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पंजाब में कई यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को सील कर दिया गया है, तो कोई भी नहीं चाहेगा ना कि इस तरह से हो सील, तो कोई नहीं चाहेगा ना कि हमारा तालीमी इदारा सील हो। इसीलिए इनको कुछ स्टेप्स लेने पड़े हैं जिसमें इन्होंने देखा कि यार जो टीचर्स पहले से ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए आ रहे हैं तो उनको हम ऑनलाइन पे करते हैं, और जो टीचर्स नहीं ले पा रहे हैं, जो उनकी अपनी स्ट्रेटजी उसके मुताबिक उन्होंने उनको उस लिहाज से कर दिया। अदरवाइज डेफिनेटली आई प्रेफर टू टेक योर क्लासेस फिजिकली। इसमें आपको बहुत सारे फ़वाइद भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। फ़वाइद भी बहुत सारे हैं इसके और नुकसान भी हैं। इज दिस क्लियर? तो हमें मैनेज करना होगा। इज दिस क्लियर? So sir, you're not in favor of online class either, right? रिमेंबर नाउ So what if you talk to the management? I have talked to the management and the management told me they are compulsion. Management told me that they are short of rooms, they are short of space. जो उनको SOPs दी गई है उसके तहत वो नहीं करवा सकते। ठीक है, मैनेजमेंट ने ये कहा है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि सर ये सेमेस्टर कम अज़ कम हम ऐसे चलेंगे। वो अब मैनेज कर रहे हैं, कुछ मेरे ख्याल से कुछ जगह बना रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वो नेक्स्ट सेमेस्टर में इंशाल्लाह एप्लीकेबल हो जाएगा। सर I सर hope so. सर अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट सर, मैंने उससे बात की है तो हाँ। उनका यही कहना है कि आप भले एक क्लास फिजिकल करा ले सर से। सर आप एग्री हो जाएं तो फिजिकल हो सकता है, हमारा पॉसिबल है। देखिए मैं इस बारे में दोबारा इंशाल्लाह चक्कर लगाऊंगा। हो सकता है आज नहीं तो कल, आज तो मुझे कल मैं आई विल विजिट यूनिवर्सिटी एंड आई विल टॉक टू देम। ठीक है, मसला अस्सलाम ये, वालेकुम हाँ, सर। तो उनसे मैं बात सर करूंगा अगर पॉसिबल हो जाए, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा आसान लगता है। मेरी बात समझ में आपको आ रही है? दैट इज़ ईजियर मैंने फॉर मी ऑलरेडी एज वेल। हाँ, लेकिन जैसे मैंने सर डिपार्टमेंट से बात की है ऑलरेडी, तो सर साकिब एग्री हो गए हैं इस पर। क्या आप अरेंज करवा जी सर प्लीज कुछ करें, क्योंकि बिल्कुल Sir, मतलब please मैं meet us if you come by tomorrow. लेकिन एक्चुअली बात वही है, जो भी होगा डिपार्टमेंट के जो भी मैनेजमेंट है वो फैसला करेंगे। आपके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज देर आर मोर देन आई थिंक 80 और 90 स्टूडेंट्स, तो वो डिपार्टमेंट जैसे कहेगा उस लिहाज से जो भी फैसले होंगे वी हैव टू फॉलो देम। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको हर चीज़ फिजिकली भी नहीं पढ़ाई जाएगी, वहाँ भी आपको बताया जाएगा, आपने करना खुद ही होगा। तो काइंडली इस चीज़ पर तवज्जो दें। जो बुक्स आपको मैंने रिकमेंड की उसको आप खरीदें, इंशाल्लाह आपको वाज़ेह फ़र्क मिलेगा। प्लस द थिंग विच आई मेंशन, दिस थिंग दीज वीडियोज़ विल बी अपलोडेड, सो यू विल फाइंड ग्रेट रिलैक्सेशन। याद रखिएगा लिटरेचर हमेशा थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल ही होता है, स्पेशली पोइट्री। अगर ये सब चीज़ें आसान हो तो फिर आपको यहाँ पे लिटरेचर में भी 80s और 90s में मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। एंड Yeah, sir, that's what I'm saying. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लिटरेचर। अब अगर हम मुश्किल को देख के
जो ये कहने लग जाएंगे यार बहुत मुश्किल है तो ये होगा, ऐसा नहीं है। आपको जो चीज़ें रिकमेंड की जा रही है उसको आप पढ़ें देखें। जैसे मैंने आपको 100 years वॉर का भी बताया, तो उसको आप चेक करें अपने तौर पे भी, ठीक है। आपके पास हिस्ट्री की बुक्स होंगी, उसमें चेक करें। यू कैन ऑल्सो सर्च ऑन नेट एंड यू कैन ऑल्सो गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, तो आपको चलेगा व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ 100 years वॉर, राइट। बाकी जो आप ये कह रही हैं ये बातें इस पे हो चुकी है, मजीद भी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इस सेमेस्टर में मेरे ख्याल है कि आसानी होगी। स्टिल वी आर गोइंग थ्रू द पीरियड एंड फ्रॉम नेक्स्ट सेमेस्टर थिंग्स may गेट इजी। फिर भी मैं इस हवाले से बात कर लूँगा, ठीक है। एनी हाउ द पीजेंट्स रिवोल्ट, तो हर चीज़ आपको याद रखिए कि टीचर नहीं बताएगा। इस मास्टर लेवल पे यू हैव टू स्टडी थिंग्स मेनी थिंग्स योरसेल्फ। टीचर विल प्ले अ रोल ऑफ फैसिलिटेटर, फैसिलिटेट करेगा वो आपको। The peasants' revolt. Now, what is being said? Norman knight and English yeomen, they fought side by side in the fields of France. नॉर्मन के जो नाइट्स हैं, नॉर्मन्स कौन थे? जो फ्रांस से फ्रांस जिनका ताल्लुक था, इंग्लिश योमेन, उस वक्त ज़्यादातर जो रिमेंबर इंग्लैंड इज एन आइलैंड एंड दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग नेवी। वाई? बिकॉज हमारी बहुत सबसे स्ट्रॉन्ग जो फोर्स है वो कौन सी है? आर्मी है। वाई? बिकॉज वी आर लैंड लॉक फ्रॉम फोर्स 3 sides. We have only small portion of क्या कहेंगे उसे, sea, and we have no fear from this side. But English England is an island and that's why they have to make they had to make their navy very strong. उनको इस चीज़ का डर नहीं कि कोई आर्मी उनको अटैक कर जाएगी, उनको डर है तो सिर्फ सी रूट से डर है। So you will find here that knight, Norman knight and English women, they fought side by side in the fields of France. Normans जो थे वो भी और English women जिन्होंने भी फ्रांस के साथ जो है लड़ाई की, there was far from complete union at home. Military glory did little for the welfare of the laborer, who titled the soil and on several occasions the misery and discontent of the poor goaded them into open rebellion. One of these occasions they were led by John Ball. So the peasants revolt, वहाँ पे फिर एक रिवोल्ट हुआ, जो वहाँ के जो तबका था एक, उसने उसको रिवोल्ट किया। इन द रेन ऑफ रिचर्ड II द peasants, peasants कहते हैं किसानों के और जो लोअर क्लास होता है उनके तबके को, दे रिवोल्टेड अंडर बॉक टेलर, सीज फॉर अ टाइम द सिटी ऑफ लंदन, और कुछ वक्त